Good morning, students. Last time we were started the chapter that is how do organisms reproduce. I told you the difference between the asexual and sexual reproduction and how variations are coming in. The most important topic was how variations are going to come in the sexual reproduction. Today we are going to talk about asexual reproduction and the different methods of asexual reproduction. So first let's see the characteristics of asexual reproduction. In asexual reproduction there is requirement of only one single parent. सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है to produce the daughter cells. There is requirement of only one single parent. The second one is asexual reproduction में gametes form नहीं होते हैं. Means meiosis is not going to take place, so though no gamete formation take place. अगर gametes नहीं होते हैं that means fertilization भी नहीं होती है, because fertilization का मतलब है fusion of gametes, so no fertilization. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं. सो द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और हम इन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम क्लोन्स. हम उन्हें क्लोन्स बोलते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द डॉटर. यहां पर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. द ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट इज कमिंग इज डीएनए कॉपिंग. बिकॉज ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने डीएनए को कॉपी करेगा और दो सेल्स में डिवाइड कर देगा. तो डीएनए कॉपिंग की वजह से थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं. बाकी के प्रोसेसेस यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा वेरिएशंस यहाँ पर नहीं होती है. जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं. उनका लाइफ स्पैन कम है, प्लस वो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सो वी विल सी द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ही कम आती हैं. So the first method of asexual reproduction is fission. Fission simply means a parent cell is going to break down into the daughter cells. That is fission. एक parent cell daughter cells में टूट जाती है, उसको हम fission बोलते हैं. Now this fission can be of two types. It can be binary fission, which simply means one parent cell is going to divide into two daughter cells. So here two daughter cells are going to form. That is binary fission. The second is multiple fission. Means one parent cell is going to divide into more than two daughter cells, multiple daughter cells, or you can say more than two daughter cells. This is how we can differentiate between binary fission and multiple fission. Let's discuss them one by one. First, we are going to discuss about binary fission. So binary fission simply means कि एक parent cell दो daughter cells में divide होती है. We are taking a simple example, that is amoeba. We know amoeba is a irregularly shaped unicellular eukaryote, and the most common method of asexual reproduction that is seen in amoeba is binary fission. Amoeba binary fission से दो daughter cells में divide होता है. So let me draw amoeba. Amoeba is there, nucleus and cytoplasm is present. Now if we see the cell of amoeba, यहाँ पर दो चीजों का डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है.
These two things are division of nucleus, न्यूक्लियस डिवाइड होगा क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स को न्यूक्लियस चाहिए है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डिवाइड होगा दोनों सेल्स के बीच में. सो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस एंड लेटर ऑन जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज डिवीजन ऑफ बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड लेटर ऑन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स. अब क्या चेंजेस आते हैं न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. ये जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होना स्टार्ट होता है. दिस इज हाउ द न्यूक्लियस स्टार्ट्स elongating. This is the amoeba and this is the elongated nucleus. So there is elongation in the nucleus. अगर हम प्लेन की बात करें तो इरेगुलरली शेप्ड अमीबा है. यहाँ पर डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड प्लेन नहीं होता है. जो ऑर्गेनिज्म सिमेट्री शो करते हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक प्लेन होता है, या तो वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहे हैं या वो ट्रांसवर्सली बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं. अमीबा इट इज इन ऑफ एनी प्लेन. अब दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिवाइड और यहां पर दो न्यूक्लियाई बन गए. अब साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म यहाँ की मेम्ब्रेन्स की इनवर्ड जब ऐसे दो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं तो परपेंडिकुलर टू इट द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट इन्वेजिनेटिंग, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं. दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड फाइनली दे आर गोइंग टू फ्यूज. और उनके फ्यूज होने की वजह से क्या बनेंगी? दो डॉटर सेल्स बनेंगी जिनमें अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दे आर हैविंग देयर ओन न्यूक्लियस एंड दे विल गेट देयर cytoplasm also. So now the invagination is going to continuously increasing. The nucleus has already separated. They are getting their cytoplasm and they are finally going to fuse, and from here we are getting two new daughter cells. This is how from one single amoeba two new, say I am calling it as a parent cell, and these are the two daughter cells that are formed. If we want to differentiate between the parent cell and daughter cell, note as such difference will be seen. The size, the daughter cells are small in size as compared to the parent cell. Otherwise they are exactly identical to each other. Another thing, if we are seeing the parent cell, after forming the daughter cell, no part of the parent cell is left behind. इस parent cell का कोई भी part पीछे नहीं बचता है. Means we are not saying that this parent cell is dead, because this parent cell has given rise. इस parent cell से क्या बन गई है? दो डॉटर सेल्स बन गई हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पीछे कोई भी डेड पार्ट रिमेन नहीं रहता है, तो हम इन्हें बोलते हैं इमोर्टल. अब ये सेल्स दोनों वापस से किस में जाएंगी? ग्रोथ करेंगी और वापस से डिवाइड करेंगी. सो अप टू हियर देयर इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, that is taking place first, and the second process that is taking place is cytokinesis. That means division of cytoplasm is taking place. This is how division is taking place in amoeba. और ये कैसा था? किसी भी प्लेन में हो सकता है. अगर हम स्पेसिफिक प्लेन की बात करें, suppose we are talking about transverse plane and longitudinal binary fission. So let's discuss about longitudinal binary fission. The organism that is going to show longitudinal binary fission is Euglena. In 9th class you studied Euglena.
that is showing the properties of both animals and plants. So this is how the euglena is appearing. And it is going to divide like this way. So nucleus is going to separate into two and division takes place in this plane. That's why we are saying longitudinal binary division. और यहाँ पर division हमेशा एक ही plane में होता है. दूसरा है transverse binary fission and the example is paramecium. Again a unicellular eukaryote, somewhat a shoe-shaped structure. So it is going to divide in this, always going to divide in the transverse plane. So their plane of division is always specified. That was not present in the amoeba. This is how binary fission take place. Now what are the characteristics of binary fission? बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और पेरेंट सेल का कोई भी बॉडी पार्ट लास्ट में नहीं बचता है. नो पेरेंट पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ पर जो पेरेंट सेल डॉटर सेल्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज बट दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द बाइनरी फिजन. एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होने के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस. लॉन्ग न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है? बाय इट इज गोइंग टू elongate एंड देन डिवीजन, एक कंस्ट्रिक्शन इज फॉर्म्ड और जिसकी हेल्प से डिवीजन होता है. सो नाउ वी विल सी हाउ मल्टीपल फिजन इज गोइंग टू टेक प्लेस. अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म बाइनरी फिजन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस मींस जब उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है, वाटर इज देयर, अच्छी कंडीशंस प्रेजेंट है आसपास, देन दे आर गोइंग फॉर बाइनरी फिजन. मल्टीपल फिजन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जब शो करते हैं व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल और उन्हें उन अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में कुछ स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट स्ट्रक्चर. सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो मलेरिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट्स सी हाउ मल्टीपल फिजन इज टेकिंग प्लेस इन प्लाज्मोडियम. अ सिंगल सेल इज देयर. While looking at it, start differentiating between binary fission and multiple fission. What happens in a single cell? Initially a single nucleus was there, cytoplasm was there. Now I told you that the first step is karyokinesis. Nucleus is going to divide. Here multiple nuclear division takes place. बाइनरी फिजन में एक ही बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं. सो लोड्स ऑफ न्यूक्लियाई आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द सेल. सेल में ज्यादा बार न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन. इसको हम सिनोसिटिक स्टेज भी बोलते हैं. सिनोसिटिक स्टेज मीन वन सेल इज हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस. नाउ दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, बट द साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू सराउंड. थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियाई को सराउंड करना स्टार्ट कर देता है. इट स्टार्ट एग्रीगेटिंग towards the surrounding the nuclei in this way. So this is how the cytoplasm will get it distributed around the nuclei. And in binary fission we have seen that there will be clear cut cytoplasmic division after the nuclear division, but such type of things are not visible in the multiple fission.
So this is how the the cytoplasm is divided, and the extra cytoplasm that is remaining, that remains inside the cell. And when this cytoplasm is going to surround the nuclei, membrane is going to formed around them. और अगर हम ध्यान से देखें तो these are going to behave as a individual cell. हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उनके पास खुद का साइटोप्लाज्म है और खुद का न्यूक्लियाई है. सो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अपीयरिंग? मल्टीपल सेल्स आर गोइंग टू प्रेजेंट इनसाइड वन सिंगल सेल. और जब ये मैच्योर हो जाता है, इट इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम वन एंड एंड दीज सेल्स आर गोइंग टू कम आउट. ये सेल्स यहां से बाहर आना स्टार्ट कर देती है, लाइक दिस वे. सो स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल सेल, और एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बन गई. अगर हम इन सेल्स को ध्यान से देखें तो इन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है और अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, दैट आउटर कवरिंग इज नोन एज सिस्ट. और ये सिस्ट, this is hard and it is helping these organisms to survive under unfavorable conditions. So unfavorable conditions में they are going to lie on different surfaces, और जैसे ही उन्हें favorable conditions मिलेंगी, cyst breakdown हो जाएगी और वहां से organism दोबारा से grow करना start कर देगा. This is how multiple fission is taking place. तो multiple fission में एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनती हैं. स्टार्टिंग में देयर इज मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है. दैट साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू सराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई, और उनके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन बनती है और ये एक इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं. जब ये सारे बाहर आएंगे, सो सम पार्ट ऑफ द पेरेंट की जो आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर जो कुछ बचा हुआ साइटोप्लाज्म है, दैट इज गोइंग टू लेफ्ट बिहाइंड. ऐसा बाइनरी फिजन में नहीं हुआ था. सो दिस इज हाउ मल्टीपल फिजन इज टेकिंग प्लेस. अगर हम अमीबा की बात करें तो फेवरेबल कंडीशंस में अमीबा गो फॉर बाइनरी फिजन, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा आल्सो शोज मल्टीपल फिजन. So now you can easily differentiate between binary fission and multiple fission. The second type is of asexual reproduction is budding. Budding, we know a bud, a small outgrowth is going to arise from the outer surface of the organism. और वो जो स्मॉल आउटग्रोथ अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बड. सो द स्मॉल आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेरेंट एंड दैट इज नोन एज बड. द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज शोन बाय हाइड्रा. द सिंपल एग्जाम्पल इज हाइड्रा. जब हाइड्रा कंप्लीटली अपना साइज गेन कर लेता है, अगर हम हाइड्रा की बात करें, इट इज अ सिलेंड्रेट, माउथ इज प्रेजेंट एंड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स बोलते हैं. सो दिस इज द माउथ. नो एनस इज प्रेजेंट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, टेंटेकल्स आर देयर. दिस फुली मेच्योर हाइड्रा, इट स्टार्ट्स, यहां से सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है. पहले एक सेल डिवाइड करेगी तो यहां से न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट होगा इसमें. अब ये सेल फर्दर डिवीजन स्टार्ट करती है तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं एंड दीज आर गोइंग टू कंप्लीटली अपीयर लाइक. ये कैसी अपीयर होना स्टार्ट होती हैं? एक बड की तरह अपीयर होना स्टार्ट होती है. सो द आउटग्रोथ दैट इज फॉर्मिंग हियर इज अ बड. और ये बड एक नए हाइड्रा में डेवलप होती है. एंड जब ये हाइड्रा अपने आप इंडिविजुअली सरवाइव करने के कैपेबल होता है, इट इज गोइंग टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है
and now it will grow individually as a new hydra. This is how budding is seen. So budding is seen in hydra. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एक नई सेल बनेगी. अब इस नई सेल में फर्दर सेल डिवीजन होंगे, बहुत सारी सेल्स बनेंगी और ये सेल्स बड की तरह अपीयर होना स्टार्ट होंगी. बड विल स्टार्ट ग्रोइंग और जब तक कि बड इंडिविजुअली सर्वाइव करने के लायक नहीं होती है तब तक वो पेरेंट के साथ अटैच रहती है. बट व्हेन इट इज ग्रोन अप एंड इट इज गोइंग टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप को डिटैच करती है यहाँ से और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह सर्वाइव करती है. दिस इज हाउ अनदर सेकेंड हाइड्रा इज फॉर्म्ड. अनदर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है कि बड हमेशा वहीं से अराइज होगी. इट कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाइड्रा. The second example of budding we can take is yeast. Yeast is a fungus, a unicellular fungus. This is the exception to fungus because बाकी जितनी भी fungus होती हैं they are multicellular. Only yeast is the unicellular fungus that is having a simple structure. So this is the nuclei and a cytoplasm. Now when this yeast cell starts dividing or a bud is formed, तो वापस से क्या होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा और ये न्यूक्लियस कहाँ एंटर हो जाएगा, जो नई बड इसके सरफेस पे अपीयर होगी, हाफ न्यूक्लियस विल बी, डिवीजन के बाद न्यूक्लियस इस पे एंटर करेगा, दिस विल बी द बड. लेकिन ईस्ट में क्या होता है, एक बड डिटैच होने से पहले ही उसके सरफेस पे और बर्ड्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो वी कैन सी चेन ऑफ बर्ड्स बिफोर दे आर गोइंग टू डिटैच, दे आर गोइंग टू फॉर्म न्यू बर्ड्स. सो इन ईस्ट चेन ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट एंड व्हेन दे आर गोइंग टू डिटैच, new members of yeast are going to be present. This is how budding is done. So these are two methods of asexual reproduction. In next class we will discuss the remaining portions of asexual reproduction.